Good evening, everyone. How are you guys? Good evening, Abhitya. Good evening, Dhanashri. I hope everybody is doing fine today. Good evening. So, up to what slide number were we done in the previous class? Anybody remembers? I'm good, Abhitya. How are you? 27? Okay. 24 or 27? This, I guess, was done, right? I'm good, Dhanashri. How are you? What we have to do this, yes. See, so yesterday we were talking about the graph of the linear equations, right? If I'm not audible for everyone, just let me know. So graph, this was not done, yeah. The graph of any linear equation basically, guys, in two variables, it's a straight line. मैंने कल भी बोला जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका जो ग्राफ होता है इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन व्हाई बिकॉज लीनियर ग्राफ है लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ भी लीनियर ही मैम होमवर्क आई चेक दैट आती है Finding intercepts can be helpful when graphing. The x-intercept is the point where the line crosses the x-axis. देखो अब हमारे पास concept आता है intercept का. In the intercept we have the y-intercept and we have the x-intercept. What is the x-intercept? x-intercept basically वो point होता है जो x-axis को काटे और y-intercept वो point होता है that cuts the y-axis basically. So it's saying on our previous graph y is equal to 2x minus 3y is equal to 12. Find the intercepts. तो अब हमें देखना है कि points कौन सा point कहाँ पे किस axis को काटता है. तो let's see. See. तो सबसे पहला जब हमने वहाँ पॉइंट्स अब इसने यहाँ दिए हैं 6 0 and 0 -4 so this is x this is y we already know this x and y for us तो अगर पहला वाला पॉइंट आप लोग देखोगे it's 6 and that is on the x axis for us that means here and 0 y axis पे 0 है तो मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है then if the points are 0 and -4 x axis पे once again क्या आ रहा है 0 आ रहा है दैट मीन्स एक्स पे आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा और वाई पे -4 steps नीचे दैट मीन्स द पॉइंट इज एग्जैक्टली हियर and this point is here and if I draw a line I can connect it like this and you guys can see the graph it's basically a linear graph for us. So is this clear for everyone or any difficulty or doubt in this? Any doubt anyone? I think no. See, so now it's asking us to find the x-intercept, plug in 0 for y and solve for x. देखो अगर हमारे पास important concept है let's suppose मैं आपको कहूँगी मुझे x-intercept ढूंढ के दो in that case y का वैल्यू आप 0 पुट करोगे अगर मैं कहूँगी y-intercept ढूंढो in that case x का वैल्यू you'll put as 0. रीजन क्या है इनका 0 डालने का देखो जब मुझे x इंटरसेप्ट ढूंढना होगा दैट मीन्स जो पॉइंट x पे लाई करेगा तो उस चीज के लिए y पॉइंट जो है जरूरी है कि ऊपर नीचे ना हो y शुड बी 0 तब भी जाके x इंटरसेप्ट पे कटेगा एंड इफ देखो अगर हमारा y होता 1 तो पॉइंट थोड़ा ऊपर चढ़ जाता y होता 2 थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता y -1 तो नीचे चला जाता we don't want that we want our point to be exactly on the x-axis itself that's the reason हम y का वैल्यू जो है 0 डालते हैं सेम इज द केस विद द y इंटरसेप्ट अगर अब y मुझे 0 चाहिए हो y का इंटरसेप्ट चाहिए हो दैट मीन्स मेरा पॉइंट y एक्सिस पे आना चाहिए उसके लिए मैं x को 0 डालूंगी क्यों क्योंकि अगर x का कुछ वैल्यू होता तो पॉइंट शायद यहाँ आता शायद यहाँ आता यहाँ यहाँ कहीं भी आ सकता था so that's the reason we put the values as 0. Is this clear for everyone? Tell me quickly. Good. That's nice. Thus, you can say the x-intercept is 0,6 and y-intercept is 0, -4. तो आगे चलते हैं
देखो अभी वो सोल्यूशन वाला है जो हमने कल किया था, जो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बेसिकली उस पे ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, जो हम वैल्यूज पुट करते हैं एक्स के, फिर वाई का कुछ वैल्यू आ जाता है, तो ये दैट इट्स दैट थिंग बेसिकली द solutions. He's saying for an equation we can list some solutions in the table. If you put x as 0, your y will be -4. इन्होंने सॉल्व करके डाला है इसमें, x is 6, y is 0, x is 3, y is -2, तो like that. अभी 0 -4 है क्या, कोऑर्डिनेट्स है आपके, पॉइंट्स है आपके बेसिकली. आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. सी कहते हैं वाई एक्सिस जो होता है ना, देखो स्पेशल लाइंस की बात करते हैं. सी 1 सेकेंड. किधर गया ये. सी दीज आर बेसिकली स्पेशल लाइन्स. इसका आपको कुछ खास कंसेप्ट रखना नहीं है अभी के टाइम पे, बट ये हम डालते हैं. इसको छोड़ो, इस पे मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दूंगी एक, तो इसको रहने देते हैं फिलहाल. देखो स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अंडरस्टैंड दैट. लुक दे हैव गिवन, 1 minute, they have given you two collinear points and you have to find the slope. Slope क्या होता है, this is your slope. कितना वर्टिकल है, कितना हॉरिजॉन्टल है, दैट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ योर लाइन. तो ये हम कैलकुलेट किससे करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करने की वी हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला व्हिच इज m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. देखो पहला जो पॉइंट, ये कोलिनियर से कंफ्यूज है, सिंपली आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये और ये, इनका अब आप मुझे स्लोप बताओ. ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y. पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरे पॉइंट होंगे x2 y2, जस्ट लाइक दैट. ओके मैम, आई हैव नेटवर्क प्रॉब्लम. आर यू एबल टू हेयर मी? If not, try moving to a location, please. Anyway, तो y2 minus yes, hello. Am I audible? Please let me know if you can hear me quickly. ओके गुड. तो इसने कुछ नहीं किया, y2 y1 x2 x1 के वैल्यूज को प्लग इन कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, एंड ही गॉट द आंसर बेसिकली. कुछ करेंगे, देखेंगे. विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. So let's see what else is given to us. It's saying graphical solutions of a linear equation now. So let us consider the following system of two simultaneous linear equations in two variables. हमारे को ये कह रहा है कि graphical solutions अपनी linear equation के ले लो. 1 minute. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, Lavanya. Ma'am, can you explain the slope from starting again because I have network issue. Not an issue. I'll explain it again. 1 second. देखो, slope basically is a steepness of your line. ओके जो आपका ग्राफ होगा. अब जब स्लोप आपको कैलकुलेट करना होता है बेटा, स्लोप की कैलकुलेशन की एक डेफिनेट फॉर्मूला होती है हमारे पास. स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द लेटर m, and slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ये आपके स्लोप को कैलकुलेट करने की फॉर्मूला होती है. इस पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इन द मीन टाइम जस्ट रिमेंबर, स्लोप इज नथिंग, स्टीपनेस ऑफ योर लाइन, आपके ग्राफ का कितना स्टीपनेस है, एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला. अभी y1 x1 x2 y2 क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपली आपके
कोऑर्डिनेट्स है जो आपको दिए गए होंगे, आपके कोलिनियर पॉइंट्स. आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. So now it's saying let us consider the following system of two simultaneous linear equations are there in two variables. एक तो ये equation दिया है और ये equation दिया है. Here we assign any value to one of the two variables and then determine the value of the other variable from the given equation. Same thing जो मैंने आपको कल सिखाई. एक वेरिएबल का कुछ वैल्यू दोगे, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ढूंढ लोगे. सेम थिंग बता रहा है क्योंकि आपका जो मोस्टली लीनियर इक्वेशन है इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व होता है. देखते हैं क्या दिया है. सी एक्स का इसने बोला है सबसे पहले पुट द वैल्यू एज 0 देन 2. तो अगर आप 0 पुट करोगे यूल गेट 1, 2 पुट करोगे यूल गेट 5. इस इक्वेशन के लिए भी इसने सेम चीज़ की. अभी इस पर थोड़े क्वेश्चन करते हैं, हम कल भी किए थे. फिर इन्हीं के जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे ना उन्हीं को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है, जैसा कि कल हमने किया था. आज हम थोड़े ग्राफ ज़्यादा करेंगे. देखो कुछ पॉइंट्स इसने दिखा दिए हैं यहाँ पे. तो देखो एक चीज जो नोटिस करनी है, यहाँ पे दो लाइंस है, isn't it? एक लाइन नहीं है, दो लाइन है. एक इक्वेशन 1 की लाइन है, एक इक्वेशन 2 की लाइन है. ऐसे ग्राफ भी ऐसे, क्योंकि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं. हमारे पास दो इक्वेशन है, अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइंस को. कुछ खास नहीं करना होता. एक के पॉइंट्स यहाँ चले जाएंगे, लेट्स सपोज दूसरे के पॉइंट्स यहाँ चले जाएंगे, बन गए एक ही ग्राफ पे दो लाइन. कभी तो 3 भी होते हैं, कभी तो 4 भी होते हैं, लाइक दैट. ओके, तो आगे चलते हैं. देखो ये करने से पहले वी शुड डू सम ग्राफिकल क्वेश्चन. दिस इज अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. इससे पहले हमारा ग्राफिकल अप्रोच क्लियर हो जाना चाहिए. लेट्स सपोज आई विल गिव यू गाइस, मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हिच वन, द ग्राफ पार्ट. Were you present in yesterday's class, Lavanya? See, graphical part में what basically we have to do is, let's suppose you have an equation 2x plus 3y is equal to 10. Okay, I will tell you please put some values for x and find some values for y. On the basis of that, the coordinates you'll get, you have to draw a graph. x चलो मैं आपको कहूँगी 2 डाल लो, 7 डाल लो, 8 डालो और 10 डालो और 12 डालो. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे y के वैल्यू बता दो क्या आएंगे. उसके बाद जो वैल्यूज आए ना आपके, लेट्स सपोज 2 डाला x को तो 2 2 ज़ा 4. सॉल्व करते हैं. देखो ऐसे 2 x का वैल्यू है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. तो 3y इज 10 माइनस 4, 3y इज 6, y इज 6 by 3, दैट इज y इज इक्वल टू, मैंने ठीक किया ना, 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 6 2. यस. तो जब आप x को 2 पुट करोगे आपका y भी 2 ही आएगा. दैट मीन्स x पे 1 2 1 2, यहाँ से 1 2, तो आपका पॉइंट किधर आ गया, 2 steps फ्रॉम x एक्सिस, 2 steps फ्रॉम y एक्सिस. दैट इज राइट हियर. तो ऐसे ही आपको सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके मुझे बताना है कि ग्राफ कैसा आया. सो दिस इज द इक्वेशन गाइस. सेम इक्वेशन रहेगी, प्लॉट करो इसको एंड शो मी द ग्राफ क्विकली. दिस वन पहले इसके लिए करो, ठीक है. इसके लिए करो साइमल्टेनियस इक्वेशन कर बनाओ. इन दोनों इक्वेशंस के लिए शो मी वन ग्राफ. कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे. कर लो इसको आराम से. वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम टुडे. Would you guys be able to do it or should I show you this one? Please tell me quickly. मैं दिखाऊं या कर सकोगे? Yes guys, दिखाऊं मैं एक, फिर खुद करोगे? Or would you be able to do it? Should I show this? लो देखो, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. पहले x के लिए 2 के लिए सॉल्व किया. अब x इज द इक्वल टू 7 के लिए करती हूँ. तो 2 इंटू 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. 7 2 ज़ा 14 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. 14 को वहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -4. y होगा -4/3. वेट 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 वेट, ये तो डेसिमल आ रहा है. 7 मत डालो, 6 डाल दो. तो 12, ये तो स्टिल -2/3 ही आएगा.
1 minute. इसको चेंज कर दो. देखो, see, I changed the equation here. तो सबसे पहले put x as 2. 2 2s are 4 plus 6y is equal to 10. 6y will be 10 minus 4. Y will be 6 by 6, that is equal to 1. अब 6 का जब हम x का वैल्यू 6 पुट करेंगे, it will be 2 into 6 plus 6y is equal to 10. 6 2s are 12 plus 6y is equal to 10. 6y will be 10 minus 12. Y will be minus 2 by 6. 2 1s are 2 3s are. Still हमें fraction पे आ रहा है minus 1 by 3. Need to find the number. Minus 1 by 3, I know. 1 minute. फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए. कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिससे फ्रैक्शन ना आए. 6 से 8 से 10 से तो फ्रैक्शन आ जाएगा. फिर x के ही वैल्यू चेंज करने पड़ेंगे. x के ही चेंज कर देते हैं. अगर 0 डाले फिर 1 फिर 2, इस पे देखते हैं. देखो, अगर x में 0 डालूं तो इट विल बी 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 10. y होगा 10 बाई 6. तो क्या आएगा 2 5 से. ये भी तो फ्रैक्शन ही आ रहा है. अगर 1 पुट करूं तो 1 सेकेंड, आई सी check some equations out. In the meantime check कि किस किस पॉइंट का नहीं आ रहा है. 2 का नहीं आ रहा है फ्रैक्शन. 3 का देख लो फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं. Check if 3 का वैल्यू पुट करके you're getting decimal और fraction या normal. Fraction is coming for 3. Leave this equation aside. छोड़ो इस equation को, दूसरी करते हैं. 1 second. इसमें यही मसला आ जाता है equation का. Look, ये equation try करते हैं. y is equal to 2x plus 3. ठीक है. और simultaneously एक और equation कर लेते हैं हम. y is equal to minus x plus 1. Okay? देखो, तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं. डब्बा बना लो. x and y. Put x as 0, 1, 2 and 3. 4 पॉइंट्स ले लेते हैं हम. दोनों इक्वेशन के लिए सेम रहेगा. इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं तो y will be 2 into 0 plus 3. x into 0 is what? 2 into 0 is what? 0 plus 3 is simply 3. तो y 3 आया. 1 पुट कर लो. 2 1s are 2. 3 plus 1 is 5. 2 पुट कर लो. 2 2s are 4. 4 plus 3 is 7. फिर 3 पुट कर लो. 3 2s are 6. 6 plus 3 is 7 8 and 9. तो ये पॉइंट्स आ गए. अब दूसरी वाली के लिए सॉल्व कर लो. मेक अनदर बॉक्स. x and y. तो x फिर से 0 1 2 3 ही पुट कर लेती हूँ मैं. तो if I'm putting x as 0, 0 into minus is what? 0 simply. Plus 1 is 1, तो 1 आएगा. 1 second. 0 डालो तो 1 आएगा. हाँ, 1 डालूंगी तो minus 1 plus 1 cancels out. It will be 0. 2 पुट करूंगी तो minus 2 plus 1 is minus 1. 3 पुट करूंगी तो 3 minus 1 is minus 2. Right? तो ये points आ गए. Is this first of all clear for everyone? 1 second please.
Yeah, sorry for that. Ma'am, how come 3579 come? See how. इसमें put x as 0, तो 2 into 0 plus 3, 2 zeros are 0 plus 3 is 3. पहला पॉइंट आ गया. अब जाकर दूसरे पॉइंट का वैल्यू डाल दो. पुट इट एज 1. 2 into 1 plus 3, that is 2 ones are 2 plus 3, that is 5. हो गया दूसरा पॉइंट. फिर जाके 2 पुट कर लो. 2 into 2 plus 3, 2 2s are 4, 4 plus 3 is 7. फिर वैसे ही लास्ट पॉइंट के लिए भी कर लो. Put it as 3, 3 2s are 6 plus 3 is 7, 8 and 9. Is it clear how 3, 5, 7 and 9 came? Understood? Good. तो अब इन्हीं पॉइंट्स के लिए हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे. देखो कैसे. ये एक लाइन. मैक्सिमम क्या जा रहा है 9 तक. मैं 10 तक चली जाती हूँ. 1 2 3 and 10 right here. ठीक है. कुछ पॉइंट्स दे दिए मैंने यहाँ पे. -1 -2 -3 -4 तक चली जाती हूँ यहाँ से. Sorry, this is positive. 1 2 3 4 5 7 8 9 तक. तो यहाँ से भी -2 -3 -4 -5 ऐसे करके. ओके. तो पहला पॉइंट क्या है. पहली इसका दे देती हूँ मैं. ठीक है. आई शो दैट विथ ग्रीन कलर. पहली वाली इक्वेशन का 0 and 3. x axis पे 0, y axis पे 3. So first point is right here. Then 1 and 5. That means 1 and 5 steps up. The point is right here. 2 and 7. 2 and 7. That means the point is exactly here. 3 and 9. 3 and 9. The point is right here. पहला. ठीक है. अब दूसरी वाली इक्वेशन का बना लेती हूँ. सेम ग्राफ पे. ग्राफ चेंज नहीं होगा. Let me change the color. 0 and 1. X axis is 0. Y axis is 1. This is the first point for this equation now. ठीक है. दोनों एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो रही है. Understand it, हाँ. Simultaneous representation of the graphs. 1 and 0. X axis is 1. Y axis is 0. The line is right here. ठीक है ना. 1 and 0. Yes. ये तो Y axis है. ये X axis है. X axis पे 1. Y axis पे 0. ठीक है. X एक्सिस पे 2, Y एक्सिस पे -1. मतलब पॉइंट यहाँ पर है आपका. फिर X एक्सिस पे 3, Y एक्सिस पे -2. दैट मीन्स पॉइंट इज राइट हियर. तो अब अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी हो, लाइन विल बी लाइक दिस. ये एक ग्राफ की है. फिर दूसरे वाले की इट्स लाइक दिस. तो समझ आया हाउ एग्जैक्टली आई शोड दिस. Is this clear for everyone? How exactly you intercepted, दिखाई अपनी lines, आपने अपने graphs को, अपने collinear points को, you converted them into the graph. Is it clear for everyone now? How exactly we form them? क्योंकि important चीज़ है. Plotting a point is important. Your slope is straight. It's a linear graph. Let me give you some more of these. Think about it. Yes, guys, what do you think? Which slope is more steep? किसका slope ज़्यादा है किस line का?
Red one or green one? Think about it today, huh? Let me give you some questions. 1 minute. Poll questions won't be possible for this, Anuj, because you have to make a graph. You have to show it to me. Try this one. 2x plus y is equal to 6 and x plus 2y is equal to 8. इनका एक ग्राफ बनाओ. Then 3x minus 2y is equal to 6 and y is equal to minus x plus 5. इन दो का एक बना के दे दो. Okay? ड्रॉ, डू इट. हर किसी का पॉइंट ढूंढो. फाइंड द इंटरसेप्ट अगर होगा कहीं पे. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. पॉइंट्स ढूंढो. मेक अ बॉक्स फॉर दिस इक्वेशन. मेक अ बॉक्स फॉर दिस इक्वेशन. पुट वैल्यूज. वैल्यूज आपके अपने तक है. ऑलवेज जब भी वैल्यूज पुट करते हो ना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. एक्स के डालो या वाई के डालो, अपनी मर्जी है. स्टार्ट फ्रॉम जीरो. 0 1 2 3 4. ये वैल्यूज डाल दो एक्स के. 0 1 2 3 एंड 4. एक्स का वैल्यू डालो, वाई का वैल्यू निकालो, फिर जाके ग्राफ्स अपने प्लॉट कर दो. एंड मेक श्योर टू प्लॉट द ग्राफ यूजिंग अ स्केल. अगर स्केल नहीं है, स्टिल ट्राई टू मेक इट थोड़ा लीनियर, क्योंकि मोस्टली इसका लीनियर ग्राफ ही आएगा एज सच. देख लो इसका. एंड व्हेन यू आर डन लेट मी नो. आई चेक इट. If you're facing any difficulty anywhere, just let me know. Which equation from 4 equation? What? In first equation, x equal to 2 is coming as fraction. This one. 2 plus y is equal to 6. 4 plus y is 6 by 4. 2 2s are 2 3s are. Yes, this is 3 by 2. Skip this point then. छोड़ दो इसको.
अगर 2 का फ्रैक्शन आ रहा है, लीव 2। थ्री का फ्रैक्शन नहीं आएगा, 4 का देख लो, 8। 4 का आई गेस विल बी फ्रैक्शन। Wait, how is it 4 का भी आ रहा है? Ma'am, can you tell? But the questions are written. One second. 2 into 2 plus y is equal to 6. 4 plus y is equal to 6. Y is 6 minus 4. It's not coming fraction. Y is 2. These are the questions. These two. This and this equation, solve it. This and this equation, solve it. इसका अलग ग्राफ बनेगा, इसका अलग ग्राफ बनेगा. This is not going to be fraction. When you put x as 2, y is also equal to 2. Mark them, they are on the board. Ma'am, which we had to draw. Why are you guys confused? These are the two equations. Put the value for x, find it for y. Points ले लो और ग्राफ बना लो. See how I'll do it. Check it for the first one. इन दो equations के लिए देख लो. दो equations हैं, दो डिब्बे बनेंगे, x and y. For equation 1, for equation 2. This is equation 1 का box, this is equation 2 का box. तो equation 1 में when you put it as 0, it will be 6 I guess, right? 2 zeros are 0, y will be 6. अगर 1 डाल रहे हो, 2 minus 6, it will be 4. 4th is minus 2, देखते हैं, 6 2s are 8, yes, it is minus 2, good. तो ऐसे ही करके अब दूसरी इक्वेशन के लिए ढूंढ लो. Put x as 0, 1, 2, 3, 4 once again. वैल्यूज जो डालोगे 0 से ही शुरू होंगे. तो if x is 0, it will be 0. 2 into y, it will 2 into 4, 4 आ जाएगा. फिर 1 डाल लो. 8 minus 1 second. अगर 1 डालोगे 8 minus 1 is 7. 7 by 2. 1 plus 2y. इधर पे मुझे लगता है ना y के वैल्यूज आप लोग पुट करो. लीव x का मत डालो. x का ढूंढ लो, y का पुट कर लो. देखो, पुट y as 0, 1, 2, 3 and 4. x का ढूंढ लो. तो जब y को 0 डालोगे, x आपका 8 आ जाएगा. y को 1 डालोगे, x आपका आ जाएगा 2 1 2, 6. 2 डाल लोगे, क्योंकि अपनी मर्जी है. x के पॉइंट डालो, y निकाल लो, y के पॉइंट डाल लो, x निकालो, टोटली अप टू यू. 2 डाल लो y में, 2 2 जा 4, 8 में से 4 काट दो तो 4. 3 डाल दो यहाँ पे, 3 2 जा 6 में से 8 में से 6 तो 2. फिर 2, ये माइनस 2 आ जाएगा. 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 0. 2 जा 8 minus 8 is 0. यस, तो ये आपके पॉइंट्स बन गए दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स. अब उठा लो अपना ग्राफ और प्लॉटिंग शुरू कर दो. ठीक है, यहाँ से तो 1 2 ऑरिजिन है, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ठीक है, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं. -1 -2 -3 -4. ऐसे यहाँ से भी -1 -2.
-3 -4 -5 ऐसे करके, ठीक है। तो पहले इक्वेशन का एक कलर से ले लेते हैं, ब्लू कलर से ले लेते हैं फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। 0 और 6, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, तो पॉइंट यहाँ पर है। एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4, तो पॉइंट यहाँ पर है। 2 और 2, 2 और 2, तो पॉइंट आपका समवेयर यहाँ पर है। 3 और 0, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 0, तो पॉइंट यहाँ है। 4 और -2, एक्स तो आपका 4 है, वाई आपका -2 है, तो पॉइंट इज राइट हियर। जुड़ा दो पहली लाइन, लीनियर ग्राफ है। दूसरी इक्वेशन का देख लो आप, ऑरेंज से दिखाती हूँ। एक्स इज 8, वाई इज 0, तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर। एक्स इज 6, वाई इज 1, तो सेकेंड पॉइंट इज हियर। एक्स इज 4, वाई इज 2, तो थर्ड पॉइंट इज राइट हियर। X is 2, Y is 3. Is it correct? If I put Y as 3, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2. हाँ, तो Y अगर आपका 3 है, X आपका 2 है, तो पॉइंट इज राइट हियर। X अगर आपका 0 है, Y आपका 4 है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज राइट हियर। तो इसको भी जुड़ा दो ऐसे करके, थोड़ा टेढ़ा हो गया, but if you can see, and once again it's a linear point, linear graph. तो did you understand how to do these kind of questions? क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ करना नहीं है, इक्वेशन है, x के वैल्यू डालो, y को ऑब्टेन कर लो, या अगर कहीं पे y के वैल्यू डालोगे x ऑब्टेन करोगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। कन्वीनियंट देख लो, क्योंकि देखो इस वाले में जब मैंने x डाला ना, y तो फ्रैक्शन में आ रहा था, दैट्स द रीजन आई ऑप्टेड फॉर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y हियर सो दैट x फ्रैक्शन में ना आए। तो दैट वर्क फॉर मी एंड आई डिड दैट। तो ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो, सेकंड वाला, एंड शो मी द ग्राफ क्विकली, एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली। Whatever works for you, Lavanya. Try putting x, x डाल लो, x का पॉइंट डालो, देखो अगर कहीं पे कोई आ रहा है ना फ्रैक्शन का पॉइंट, फिर y में चले जाओ, x छोड़ दो, फिर चेक कर लो एक बार, अगर x 0 डाल रहे हो y क्या आएगा। क्योंकि देखो बुक में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑलरेडी उनने चेक किए होते हैं कि कैसे होंगे, दे ऑलरेडी नो इट। अब हमें तो नहीं पता, हमने तो चेक नहीं किया, वो चेक करके पॉइंट्स को देते हैं ताकि ग्राफ ऐसा वैसा है। यहाँ पे वी आर डूइंग अ हिट एंड ट्रायल मेथड एक्चुअली, तो वी डोंट नो, तो खुद से देखना पड़ेगा। First is coming fraction, when you're putting the values of x, then skip x, put the value for y, 0 डाल दो, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फिर वो 3 2, तो 2 आ जाएगा। डाल दो y के वैल्यूज यहाँ पे, फिर से डाल दो y के वैल्यू, ऐसे ठहरो, y का 0 डाल दो, x विल बी आई गेस 2, फिर 1 2 3, 3 तक चले जाओ, नो नीड टू डू 4। check for 1,
y3 1.50 minus 1.5. ठीक है, 1.5 भी ले लेते हैं, इसमें क्या है, दिखा देंगे अपने ग्राफ पे, नॉट अ बिग इशू। कर लो, plot it on the graph. बन रहा है ग्राफ? आर यू एबल टू मेक इट और नो? ट्राई दिस क्वेश्चन एज होमवर्क टुडे, ओके? इसको होमवर्क कर लो, ठीक है? You can take a screenshot of the chart as reference also. Screenshot भी ले सकते हो in case कहीं confusion हो जाए. Do this one as the homework today, okay? And in the next class, just remind me before we start the class. मुझे बस reminder एक दे देना to check the graph. Okay, so that will be it for today. Let me give you your coins. 1 minute. And everyone just make sure to join on time, okay? So that nothing is left for you. कुछ skip ना हो जाए. Join exactly at 7. You guys can collect your coins. Okay guys, so that will be it for today's class. Thank you so much for joining. Have a good day. Have a good night. Bye bye.